Hello everyone, myself Pushali Kathiria. In this video, we discuss new chapters. Here we will start our new chapter, that is a fifth number chapter, or that's called a greedy algorithm. So, up to this lecture, we have a complete four chapter. First one is the introduction of algorithm. Second is the sorting of algorithm, okay. Third one is the divide and conquer, and fourth one is the dynamic programming. Now fifth one is the greedy algorithm. These three, that means second, third, and fourth chapter is the most important chapter, as well as fifth number chapter, that is a greedy algorithm. They also have important chapter as per your GTU syllabus. So this chapter contain a 50% weightage of all our syllabus. So this one is also important for that. So in this video we only discuss the introduction of greedy algorithm and how to why we need a greedy algorithm, because we have already provided a solution using another method, another algorithm. But why we used a greedy approach? Why we used greedy algorithm? So here we discuss it, as well as we discuss the problems, which kind of the problems we will deal or we will solve using the greedy algorithm. So this kind of the topics or this kind of the key facts we will discuss in this video or today's lecture. So first of all, discuss the outline or which kind of the topics we will discuss in our fifth number chapter, that is a greedy algorithm. So first of all, we discuss the introduction part of greedy algorithm. After that, problem solving, using which kind of the problem we will use, or which kind of the problem we will solve using greedy algorithm, that is a activity selection problem, element of greedy strategy, as well as minimum spanning tree, which kind of the spanning two authors or two spanning trees, Crucial's algorithm and Prime's algorithm. Okay, this kind of the both algorithm are used for the minimum spanning tree. After that we discuss the graphs based shortest path. We identify the shortest path for the graph. After we discuss the knapsack problem. In dynamic programming, we learn what is a knapsack problem. Okay, but in dynamic programming, we solve our knapsack problem using dynamic programming. Now in our greedy algorithm, we solve our knapsack problem as a greedy programming or greedy algorithm. After that, job scheduling problem and Hoffman code. Okay. So this kind of the problem we will discuss in fifth number chapter, that means in greedy algorithm. In this video, we discuss only brief introduction about the greedy methods, as well as we comparison between greedy algorithm as well as dynamic programming. Which one is the better and which one is the best, which one is the give best optimal solution, there are we discuss in this video. So let's start with introduction of greedy algorithm. So a greedy algorithm is a simple algorithm. Okay, there is a used in optimization problem. Okay, the algorithm makes the optimal choice at the each step as attempts to find the overall optimal way to solve the entire problem. Greedy algorithms are quite successful in some problems, such as Hoffman encoding, which is used for the compressed data, or Dijkstra algorithm, which is used for the find shortest path through a graph. First of all, we discuss the what is the greedy algorithm. Greedy algorithm is the simplest technique. Okay, अगर आपको कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, ऑप्टिमल प्रॉब्लम है उसको ऑप्टिमाइज करना है, और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट मीन्स उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है. सपोज आप बोल रहे हो कि आपको कोई एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करना है. ओके, बट वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ साथ उसको उस सब्जेक्ट में आपको 100 में से 90 प्लस तो ले ही आना है. तो आप क्या करोगे भाई, जितना भी होगा उतना मैं कम से कम टाइम में उसको प्रिपेयर करूँगा और हाईएस्ट मार्क मतलब कैच करूँगा. ओके, तो क्या होगा, टाइम मिनिमम होना चाहिए कि भाई एक ही सब्जेक्ट मुझे नहीं करना है, बट मुझे और 5 सब्जेक्ट करने हैं कंप्लीट. ओके, बट पांचों के पांचों सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं. तो आपको क्या करना होगा, टाइम मिनिमाइज करना होगा. आपकी मेहनत है, आपकी
आपका जो मार्क्स लाने का है फॉर्मूला, उसको आपको क्या करना है, हार्ड करना है। दैट मीन्स मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए बट मेहनत कम, सॉरी टाइम कम चाहिए, तो उसको आप क्या करोगे, दैट मीन्स टाइम लेस कॉस्ट ज़्यादा। ओके, तो आप क्या करोगे कि भाई उसकी मदद से आप उस हिसाब से आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। ओके, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के हर एक स्टेप पर आपको ऑप्टिमल वे में से आपको सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। ओके, दिस मेथड इज पॉपुलर फॉर द obtaining optimal optimized solution in greedy technique. The solution is the construct through a sequence of steps. आपको क्या करना है, पार्शियली आपको पहले आपका जो प्रॉब्लम है उसको पार्शियली सॉल्व करना है, देखना है कि विच वन इज द बेटर, उससे आप आगे जाना है। अगेन आपको सॉल्व करना है विच वन इज बेटर, और उससे आप क्या आगे जाना है। दैट मीन्स आपको ऑप्टिमाइज्ड फेज जो है उससे बाहर नहीं जाना है। ओके, आपको आपके सेफ जोन में ही चल के आगे जाना है। ओके, तो ग्रीडी मेथड में क्या होगा, ग्रीडी मेथड में होगा कि भाई वो जो उसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको ऑप्टिमाइज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन बने, बेस्ट सॉल्यूशन बने। ऐसा भी ना हो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते वक्त आपका टाइम ज़्यादा लग जाए। ओके, और एवरेज टाइम के हिसाब से। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, so what is a greedy, greedy is identify the optimal solution in optimization time. Okay, if आपके पास multiple solution है, this one is the general characteristic of greedy algorithm. First of all, we select some solution from the input domain. Okay, अगर आपके पास multiple solution है तो उसमें से आपको एक solution select करना है। Then we check the whether solution is feasible or not. Okay, अगर वो feasible है, हमारी condition के हिसाब से है, तो आपको क्या करना है, उसको check करना है feasible है या नहीं है। ओके, from the set of feasible solution, particular solution that satisfy the nearly object of the function such as solution is called optimal solution. अगर आपके पास कोई n number of solution है, उसमें से k number of solution है वो feasible है, तो वो k number of solution में से optimal solution एक ही होगा। तो वो optimal solution क्या है, वो आपको identify करना है। So first of all, this one is the greedy algorithm. Okay, this one is the D is a domain and N is a solution. Okay, here we select solution from start from 0. Okay, now we select 1 2 3 up to n. Okay, so here start from 0 to n, 0 से start करना है और n तक जाना है। Okay, selected solution S में डालना है, उसको check करना है feasible, if yes feasible है तो उसको क्या करना है, union, that means उसको optimal दे देना है, अगर नहीं है तो आपको अगेन रन करना है। सो दिस वन इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ये वाले एल्गोरिथम को हम एक अच्छे से एग्जांपल के साथ चेक करते हैं। सपोज आपको कोई एग्जाम है, आपको 5th सेमेस्टर की एग्जाम है, उसको आपको क्लियर करना है। ओके, तो 5th सेमेस्टर की एग्जाम में आपको सपोज के 5 सब्जेक्ट है, हर एक में 5 या तो 6, 5 या तो 6, 5 या तो 6 चैप्टर्स है। ओके, सो सपोज कि आपको क्या करना है, 5th सेमेस्टर क्लियर करना है आपका इंजीनियरिंग का। ओके, अब आप क्या करोगे, आपके पास मल्टीपल वे है क्लियर करने के लिए कि भाई सपोज कि आप पहले से स्टडी करो, जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तब से आप 1 बाय 1 जो डे बाय डे आपको पर सब्जेक्ट हो रहा है वो आपको क्या करना है, वो आपको लर्न कर लेना है, तो आपको आ जाएगा भाई किस कौन सब्जेक्ट में क्या हो रहा है। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन इज दैट कि आपको एक एग्जाम के 1 वीक पहले या तो 15 दिन पहले पता चला है, तब आपको करना है स्टार्ट। ओके, और कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई अगली नाइट को, अगली रात को वो पढ़ने बैठते हैं, तो आपके पास कितने सॉल्यूशन हुए भाई, आपके पास 1 बाय 1 डे बाय डे का आप पढ़ते जाओ। सेकेंड वन इज द कि आप एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ो। थर्ड वन इज द एग्जाम की अगली रात को पढ़ो, या तो फिर आप एग्जाम की अगली रात को कोई वीडियो देखकर पढ़ लो। ओके, यूट्यूब में कई सारे वीडियो आते हैं, तो आप वीडियोस देखकर पढ़ लो, या तो फिर कोई आप रेफरेंस बुक रिफर करो, या तो फिर आप कोई सपोज कि टेकमैक्स है, टेक्निकल है, अतुल है, उसकी बुक रिफर करो। आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है ना, या तो फिर आप चीट्स लेकर जाओ। ओके, दिस वन इज द नॉट बेटर वे बट जस्ट एग्जाम्पल। तो जस्ट आप चीट लेकर जाओ, या तो फिर आपके आगे है पीछे है,
कहीं पर भी आपके फ्रेंड से आप कॉपी कर लो, ओके। या तो फिर आप एग्जाम मत दो, बैक ले आओ, बैक लाने के बाद नेक्स्ट टाइम आप अगेन उसको क्या करो, रन मतलब रिफर करो और अच्छे से लर्न करके जाओ। तो आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है, ओके। अब फिजिबल सॉल्यूशन हमें क्या करना है, फिजिबल सॉल्यूशन दैट मीन्स आपको चीटिंग नहीं करनी है, दैट इज अ नॉट फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन दैट मीन्स आपको चीटिंग करे बगैर ही आपको पास होना है। दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, या तो फिर वन बाय वन लर्न करना होगा, या तो फिर 15 दिन पहले लर्न करने बैठ जाना होगा, या तो फिर अगली रात को बैठना होगा, या तो फिर आपको रेफरेंस बुक यूज करनी होगी, या तो फिर आपको लोकल बुक यूज करनी होगी, या तो फिर आपको यूट्यूब पर से वीडियो देख लेना होगा, ओके। तो या तो आपको अपने फ्रेंड से सीख लेना है, ये तो 5 मिनट एग्जाम के 5 मिनट पहले भी होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसमें से फिजिबल सॉल्यूशन, तो चीटिंग वाली जो थी, तो भाई चीट्स लेकर जानी थी, फ्रेंड्स में से देखना था, वो आपको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। दैट मीन्स आपको पास 10 सॉल्यूशन थे एग्जाम में पास होने से, अब आपके पास कितने सॉल्यूशन है, 6 सॉल्यूशन है। अब वो 6 सॉल्यूशन में से भी आपको क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मीन्स टाइम कम और आपके मार्क्स ज्यादा, और आपका मोटिव जो पास होने का है वो ज्यादा। तो आपको एक बेटर ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, बेटर ऑप्शन इज दैट कि आप अपने फ्रेंड्स के पास से सीख लो। फ्रेंड्स जैसा टीचर कोई नहीं होता, आपको एग्जाम के 5 मिनट पहले भी वो सिखा देगा, और आप एग्जाम में लिख भी सकते हो पास होने के जितना, ओके। अगर आपको पास ही होना है तो व्हाट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द पासिंग द एग्जाम इज आस्क टू फ्रेंड। फ्रेंड आपको क्या करेगा, सिखा देगा, और आप एग्जाम में लिख देना, दिस वन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ एन सॉल्यूशन में से फिजिबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किए, दैट मीन्स उस फिजिबल सॉल्यूशन में से आपको पास होने जितना कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन लगा, वो लगा आपको फ्रेंड्स को पूछकर पास होना। दैट मीन्स फ्रेंड्स को आप क्लासरूम के बाहर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पूछ लो, वो आपको सिखा देगा, और आपको आ गया है, वो आप लिख दोगे एग्जाम में और आप पास हो जाओगे, ओके। दिस वन इज द प्रोबेबिलिटी, बट दिस वन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ओके। तो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करता है, ग्रीडी एल्गोरिथम करता है कि वो जो फिजिबल सॉल्यूशन है, नॉट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, बट जो फिजिबल सॉल्यूशन है उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन ट्राई करता है आइडेंटिफाई करके, और वो आपको रिजल्ट देने की ट्राई करता है, ओके। so here I have give comparison between greedy algorithm and dynamic programming. So we have already learned dynamic programming. Dynamic programming is always give optimal solution. So greedy method is the previous method of dynamic programming. Greedy अगर greedy fail होता है तो dynamic programming क्या कर लेगा, handle कर लेगा, but dynamic programming अगर fail होता है तो greedy algorithm handle नहीं कर पाएगा. That means ग्रीडी एल्गोरिदम का नेक्स्ट जो अपडेटेड वर्जन है उसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ओके। सो हियर वी कंपेयर टू एल्गोरिदम्स, which one is the greedy algorithm and second one is the dynamic programming. So what is the greedy algorithm is used for the obtaining optimal solution. This one is also used for the obtaining optimal solution, both are used for the optimal identify or obtain optimal solution. In greedy method, a set of feasible solution and pick up the optimal solution. We have a set of feasible, we have a solutions, number of solution. After that, we apply some condition on the solution and we identify or we receive some feasible solution from the all solution. After that, we pick one optimal solution from the feasible solution, and that's called using a greedy algorithm. Where डायनेमिक प्रोग्रामिंग देयर इज नो स्पेशल सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इन दिस मेथड. आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें से कोई एक ले लो सॉल्यूशन, वो आपको देगा ही देगा, और वो मे बी ऑप्टिमल हो सकता है, बट अगर आप बेस्ट सॉल्यूशन ट्राई करते हो आइडेंटिफाई करने की, वो क्या होगा, तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑलवेज गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इन ग्रीडी मेथड ऑप्टिमल सिलेक्शन इज विदाउट रिवाइजिंग द प्रीवियस जनरेट सॉल्यूशन. यहाँ पर प्रीवियसली Dynamic programming consider all possible sequence in order to obtain the optimal solution. Dynamic programming में क्या था, Dynamic programming में हम कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको कहीं पर स्टोर कर देंगे. बट ग्रीडी में वो कोई सॉल्यूशन है प्रीवियस सॉल्यूशन, उसको हम स्टोर नहीं करते, ओके. तो उसको हम रिवाइज भी नहीं करते, स्टोर भी नहीं करते. कोई भी ग्रीडी में
जो हमारा ग्रीडी है, ग्रीडी एल्गोरिदम, वो प्रीवियसली जो सॉल्यूशन बन गया है उसको रिवाइज नहीं करता, जबकि हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो प्रीवियसली जो हो गया है जनरेट, उसको रिवाइज करने के बाद ही वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। हम एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने एक एग्जांपल देखा था, एक प्रॉब्लम देखा था, असेंबलिंग लाइन शेड्यूलिंग। असेंबली लाइन शेड्यूलिंग में क्या था, तो भाई प्रीवियसली जो शेड्यूल है, प्रीवियसली शेड्यूल में जो मिनिमम कॉस्ट जिसकी शेड्यूल की है, वो शेड्यूल आप क्या करते हो, फॉरवर्ड करते हो। ओके, उस फॉरवर्ड को लेकर उसके हिसाब से आप अपने कॉस्ट प्लस करते थे ना। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या था कि भाई प्रीवियसली जो शेड्यूल कम हो शेड्यूल का कॉस्ट, वो कॉस्ट हम यूज करेंगे। जब ग्रीडी में क्या है, भाई कोई प्रीवियसली रिवाइज नहीं होगा, जो हो रहा है एक शेड्यूल में वही लाइन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन जनरेट करना है। इन ग्रीडी मेथड देयर इज नो सच गारंटी और ऑफ गेटिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यस और नो, मे बी it optimal solution or maybe not. Okay, if we talk about the dynamic programming is always guaranteed that the dynamic programming will generate optimal solution using principle of optimality. Using the optimality concept, we always derived or we always generate our solution as optimal solution using dynamic programming. So here we guarantee, we can say like this one is the guaranteed solution and this one is not guaranteed solution. Okay, in this greedy algorithm we discuss this kind of the problems. Which kind of the problem? Knapsack problem, Franz algorithm for minimum spanning tree, crucial algorithm for the minimum spanning tree, finding the shortest path for the graph, job scheduling with deadline and activity selection problem. This kind of the problem we will discuss in greedy algorithm, or using a we will solve this kind of the problem using greedy method. Okay, last slide is the what is the element of greedy strategy. Greedy strategy have two elements. First one is the greedy choice property and second one is the optimal substructure. Okay, so what is a greedy choice property? Greedy choice property that means आपके पास जो globally optimal solution है उसको आपको क्या करना है, locally ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाए। दैट मीन्स कि आपको कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब आपको वो पता नहीं है वो प्रॉब्लम क्या है, बट उस प्रॉब्लम का आपको क्या करना है, सब सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करना है। एक प्रॉब्लम का सब सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, उस सब सॉल्यूशन को आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन में यूज करना है और उसको कंसीडर करना है, और अगेन वो आपको क्या करना है, उसको सब प्रॉब्लम का यूज करके आपको अगेन उसको क्या करना है, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। और वन बाय वन आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते जाना होगा, और वो क्या करेगा, उसके हिसाब से जो बेस्ट होगा, दैट मीन्स सब प्रॉब्लम्स में से जो कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन है वो बेस्ट होगा, वो आपको क्या करना है, चॉइस करना है। दैट मीन्स ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी. And another one is the optimal substructure. Optimal substructure, that means if an optimal solution to the problem contains optimal solution to the sub problem, then this is called the optimal substructure. That means जो हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर दैट मीन्स जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें आइडेंटिफाई करना है, उसकी जो नेक्स्ट चॉइस है वो हम कैसे करेंगे, उसकी हिंट वो किससे मदद से मिलेगी, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर से। ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी दैट मीन्स आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम है, मल्टीपल सॉल्यूशन है सब प्रॉब्लम्स का, उसके पास सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसके मदद से आपको क्या करना है, चॉइस करना है बेस्ट सॉल्यूशन का। वो सब प्रॉब्लम्स के सब सॉल्यूशन की मदद से आपको क्या करना है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर के आगे बढ़ना है। दैट मीन्स वो जो सबस्ट्रक्चर का सॉल्यूशन है उसको आपको क्या करना है, लीड लेना है, हिंट बनाना है कि भाई हमने जो यहाँ पर चॉइस की है उसकी हिंट हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में है। दैट मीन्स क्या उसकी मदद से हम हमारा बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आपको किसकी मदद से करना है, सिलेक्ट करना है। So this called a greedy choice property and this called a optimal substructure. Okay, so this one is the simplest way to solve the greedy algorithm. Okay, so in next video or next lecture we will see
the problems, which kind of the problems how to solve different kind of the problem using greedy algorithm, like how to solve activity, knapsack problem, minimum spanning tree, crucial frames, okay, shortest path, this kind of job scheduling problem. So this kind of the problem we will see in our next videos. Okay, so in this video we only discuss the brief or a brief introduction about greedy algorithm, as well as some characteristic of greedy algorithm. Thank you.